Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Today in this video, Anatomy and Histology lectures, I am going to discuss about integumentary system or system of the skin, part 1. In this part 1, I shall explain major parts of the integumentary system, components of the integumentary system, and there are some points in part 1 and some points will be explained in part 2. Now let us see the contents. List of contents include definition, history or background, location in the body, medical embryology, gross anatomy, medical histology, endocrinology, blood supply, nervous supply, lymphatic drainage, functions, diagnosis, microbiology, clinical anatomy, pharmacology, and references will be given at the last slide. So here is the skin. You can see layers, tactile receptors and appendages of the human skin. You can see in a software where thick skin, palm, you can see palm has no hair, so hair are not shown here. In the other hand, if you see thin skin, axilla, for example, you can see the hair growth is there. In the palm there is no growth of hair. So these are the things we are going to discuss about layers, tactile receptors and appendages of the skin. So let us see the next portion of definition of about derm. Some facts about skin. Skin के बारे में देखते हैं यहाँ पे कौन से facts हैं. Skin is the largest organ of the body. एक तो सबसे largest organ है. Larger के लिहाज से देखा जाए तो सबसे largest है. It has an area of 2 square meters or 22 square feet in adults and weighs about 5 kilograms. The thickness of the skin varies from 0.5 millimeter thick on the eyelids to a 4 millimeter thick on the heels of your feet. So these are the differences between the skin size. जो यहाँ पे thickness है वो different vary करती है मुख्तलिफ जगहों पे, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. Skin जो है major barrier है between the inside and outside of your body. क्योंकि ये स्किन से ही जो क्रॉस करके जाएगी बॉडी के अंदर जाएगी, इंजरी होगी, कुछ भी होगा, ये क्रॉस करेगी सबसे पहले उस लेयर को, स्किन वाले को क्रॉस करेंगे, फिर किसी बॉडी के पार्ट से आप एंटर हो सकते हैं. अगर सर्जरी भी करनी हो तब भी इसे सबसे पहले काटा जाएगा. तो लिहाजा लेट अस सी व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसका पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में. इंटेगुमेंट्री सिस्टम या सिस्टम ऑफ द स्किन, बॉडी के अपेंडेजेस और स्किन का जो सिस्टम है, कंसिस्ट्स ऑफ स्किन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, एंड एक्सेसरी ऑर्गन. दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. एक तो स्किन जिसे कहते हैं और उसके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं. मसलन इसमें ग्लैंड्स हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और कुछ अदर पार्ट्स हैं, हेयर है, नेल्स हैं, तो वो एक्सेसरी पार्ट्स में शुमार होंगे. स्किन इज़ द लार्जेस्ट एंड प्राइमरी प्रोटेक्टिव ऑर्गन इन बॉडी, covering its entire external surface and serving as a first order physical barrier against environment. तो सबसे पहले जो first order physical barrier है against environment, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे तो इसको क्रॉस करके फिर एंटर होंगे बॉडी के अंदर, या डिफरेंट ओपनिंग से जा सकते हैं या स्किन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर होंगे. इस वजह से सबसे पहले बैरियर ये है. स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers ऑफ टिश्यू. मेजर 3 layers हैं इसमें. आउटर एपिडर्मिस से हम कहते हैं, मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ये अगर हिस्टोलॉजी देखी जाए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है. दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मिडिल डर्मिस की, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. एंड इनर सबक्यूटेनियस लेयर जो थर्ड है, इनर मोस्ट है, और हेपोडर्मस भी जिसे कहा जाता है, मेड ऑफ एडिपोज टिश्यू इन लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. द स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी. और जो स्टडी करता है डॉक्टर उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, जो इसकी स्टडी करता है. स्किन स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है. तो मुख्तलिफ नेम है इसकी. बहुत सारे डिजीज़ होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर अफेक्ट करती हैं. तो हर चीज़ को आप देखते हैं
नंबर वाइज कि कौन कौन सी चीज़ें इन पे अफेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट वी सी द कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन। इंटेगुमेंटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले है स्किन, स्किन अपेंडेजेस, उसमें हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डीप फेशिया। फेशिया जो है डीप फेशिया और सुपरफेशियल फेशिया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस में, तो वहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस हैं कुछ, और ब्रेस्ट्स जो है वो भी स्किन का पार्ट है, अपेंडेजेस में शुमार होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, यू कैन सी multiple things you can see from here, but I will explain only the major points. एपिडर्मस, ये देखें सबसे ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे एपिडर्मस हम कह रहे हैं, उसके नीचे एपी का मतलब ऊपर, यानी ऊपर होना, डर्मिस से ऊपर होना। तो डर्मिस जो है उसके लोअर पार्ट है, नीचे इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और उनके जर्मिनिवेटकम जो इसके स्ट्रेटम स्पाइनोजम मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जो आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं। और सबक्यूटस या हेपोडर्मस इसे कहा जाता है, लोअर पार्ट होता है जहाँ से अराइज होती हैं चीज़ें और उसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें स्वेट ग्लैंड, पिसिनियन कार्पसल और ये जो अदर नर्व फाइबर्स हैं, पेपिला ऑफ हेयर है, हेयर फोलिकल है, सेबेशियस ग्लैंड है, इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो दीज आर द थिंग्स जो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्वेट पोर है, डर्मल पेपिला है, सेंसरी नर्व एंडिंग ऑफ द टच है, ये भी यहाँ पे पाया जाता है, टच रिसेप्टर जिन्हें हम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, यू कैन सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई, कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो। इसके बाद आगे इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम करते हैं। लेट अस सी द लोकेशन ऑफ द स्किन की अगर हम बात करें कि कहाँ पे लोकेटेड है, सब साफ ज़ाहिर है, क्लियर आपको पता है। स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटेगुमेंटरी सिस्टम। पहले भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, फर्दर यहाँ पे भी आप दोबारा इसको रीड कर लें और इसको स्टडी कर लें। स्किन हैज़ अप टू 7 लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू। एक्टोडर्मल ओरिजिन से निकलती है बेसिकली, एंड गार्ड्स दी अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है, उसको अंदर समेटती है और उसको बचाती है, मतलब इन चीज़ों को। बिकॉज इट इंटरफेस विद द इन्वायरमेंट, स्किन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्यूनिटी रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड एक्सेसिव वाटर लॉस। एक तो एक्सेसिव वाटर लॉस से, पसीने से जैसे बचाता है पानी को, और इसके अलावा अगेंस्ट पैथोजेंस से भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी फर्स्ट ऑर्डर जो ये इम्यूनिटी बनाता है, बेसिकली इम्यूनोलॉजी में इन्वॉल्व होता है। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो आगे देखते हैं। सिवियरली डैमेज स्किन विल ट्राई टू हील बाय फॉर्मिंग स्कार टिश्यू। दिस इज ऑफन डिस्कलर्ड एंड डीपिगमेंटेड होता है, पहले जो स्कार बनता है फिर डीपिगमेंटेड होता है, फिर लेकिन हीलिंग इसकी हो सकती है स्किन की। इसके बाद हम अगर देखें थिक लेयर, जैसे हेयर लेस पोर्शन ऑलरेडी मैं शुरू में पिक्चर दिखाई थी, और थिन लेयर जैसे यहाँ पे हेयरी होती है, जहाँ पे थिन लेयर होती है वो हेयरी है, थिक लेयर जो होती है हेयर लेस होते हैं। इनके देखें डिफरेंसेस क्या हैं आपस में। एपिडर्मस है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसी तरह यहाँ पे अगर देखें सुपरफिशियल एट्रियोविनस प्लेक्सेस हैं, ये ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। पेपिलरी डर्मस है, इसके अलावा डर्मिस और हेपोडर्मिस जो सबक्यूटस भी कहते हैं इसको, डीप आर्टीरियोविनस प्लेक्सेस हैं, सबक्यूटेनियस फैट है, डर्मल नर्व्स हैं, इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, पिसिनियन कॉर्पसल्स हैं, ये पाए जाते हैं इन एरियाज में हेयरलेस में। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हेयर शाफ्ट है, थिन लेयर में हेयरी जहाँ पे है यानी बाल हैं उसमें, उन एरियाज में ये स्किन होगी, इस शक्ल की होगी। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। इसमें हेयर शाफ्ट है, ओपनिंग ऑफ द स्वेट डक्ट है, स्वेट ग्लैंड की डक्ट भी इसके साथ यहाँ पे होती है। डर्मल पेपिला है, जहाँ से डर्मल का जो पोर्शन है नीचे वाला उसको पेपिला कहते हैं। इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, ये इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं जो इसको हेयर को इरेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। स्पेशियस ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट नियर द हेयर के साथ साथ ये भी रिलीज होते हैं। स्पेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करते हैं बेसिकली। हेयर फोलिकल हैं, इक्राइन स्वेट डक्ट हैं, इक्राइन स्वेट ग्लैंड हैं, ये कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखाएंगे। ब्लड सप्लाई भी आपके सामने दिखाई गई है जिसमें ब्लू कलर और रेड कलर दिखाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इज हेयर, you can check and ask. Now going to the third part, that is embryology.
एम्ब्रियोलॉजिकली एपिडर्मिस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सबसे पहले एक्टोडर्म से होती है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। लेकिन कुछ जो पोर्शंस हैं वो मीजोडर्म से भी रिलीज होते हैं, वो देखेंगे कि कौन कौन से सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एपिडर्मिस को खास तौर पे अगर देखा जाए आउटर मोस्ट लेयर है, तो एक्टोडर्मी आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। ये 3 मेजर डर्म्स होती हैं एम्ब्रियोलॉजी में, आपने पढ़ी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। तो लिहाजा एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर। अगर 3 लेयर में से देखा जाए, इट इज इनफिल्ट्रेटेड विद पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स नोन एज मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट जो मेलानिन होते हैं वो रिलीज करते हैं, जो कि स्किन को कलर देते हैं, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल क्रेस्ट जो है वहाँ से ये रिलीज होते हैं, वहाँ से ये बनना एपिडर्मिस स्टार्ट होती है। अदर सेल टाइप्स नॉर्मली प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस इंक्लूड केराटिनोसाइट्स। केराटिन जो सेल बनाने वाली साइट होती है, केराटिनोसाइट, केराटिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें केराटिनोसाइट्स कहेंगे। एंटीजन प्रोसेसिंग लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, ये एक सेकंड जो टाइप है इसकी। एंड मर्कल सेल्स होते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, यानी टच वाले रिसेप्टर्स जहाँ पे सेंस करते हैं प्रेशर को, चेंजेस एट द बॉटम ऑफ द एपिडर्मिस में ये महसूस करते हैं। इसके बाद द डर्मिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, जबकि डर्मिस है ये एपिडर्मिस की हमने बात की, ऊपर जो अपर लेयर है। इसके बाद अगर डर्मिस की बात करें, ये मीजोडर्म से डिराइव हुई थी, सेकंड जो लेयर होती है, अंदरूनी लेयर है, इनर मोस्ट नहीं है लेकिन दरमियानी लेयर है। एंड कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स एंड सेल्स इंक्लूडिंग इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, एडिपोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स। इन सेल्स को ये पाए जाते हैं ज़्यादातर इनमें। तो डर्मिस के बारे में आपने देखा, उनकी एम्ब्रियोलॉजी देखी है। 4th नंबर पे हम जाते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी की बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। बेसिक ये बात हम करने वाले हैं, क्योंकि 3 एनाटॉमी की जो मेजर टाइप्स हैं उनमें ग्रॉस एनाटॉमी, मेडिकल हिस्टोलॉजी एंड मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी जो है ना, 3 मेजर ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी की, कि नेकेड आई से हमें स्किन के क्या क्या पार्ट्स नजर आते हैं और क्या क्या काम करते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। लेट अस सी। स्किन इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, एपिडर्मिस है और डर्मिस है, एंड द डीपेस्ट सबक्यूटेनियस लेयर या हैपोडर्मिस कहते हैं। 3 लेयर्स जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड थर्ड इज डीपेस्ट होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू या हैपोडर्मिस भी कहते हैं। द एपिडर्मिस, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, प्रोवाइड्स a waterproof barrier and contribute to skin tone। स्किन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, टोनिसिटी में इन्वॉल्व है। डर्मिस फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से नीचे पाई जाती है उसे डर्मिस कहते हैं। कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, इनमें कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी ब्लड सप्लाई है जिसे हम कहते हैं, और भी इसमें कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। हेयर फोलिकल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई भी यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होंगी। लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं, ये भी होती हैं। और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड भी आल्सो प्रेजेंट हैं, इन डर्मिस में होते हैं। डीपर सबक्यूटेनियस हैपोडर्मिस इज दी मेड अप ऑफ, ये जो बनी होती है वो फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये ओवरव्यू है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द स्किन की, या स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन की बात कर रहे थे। एपिडर्मिस इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स ऑन थिक स्किन लाइक द पॉम्स एंड द सोल्स। 5 लेयर में इसको डिवाइड करेंगे। किन लिहाज से? थिक स्किन लेयर की बात अगर करेंगे, पॉम्स और सोल्स की, जहाँ पे बाल नहीं होते, उनमें 5 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटम बेसिल भी कहते हैं या बेसल कहते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम सेकंड मोस्ट लेयर है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कार्नियम। while in other places epidermis has 4 layers, lacking the stratum lucidum सिर्फ कम होती है। ये डिफरेंस है बिटवीन द 2 लेयर्स। अगर हम बात करें कि थिन लेयर में और थिक लेयर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो एपिडर्मिस में नहीं होती। बाकी जो है ना वो 5 होती हैं, इधर 4 होंगी, एक कम होगी, लैकिंग स्ट्रेटम ल्यूसिडम। डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। पेपिलरी डर्मिस एक 2 लेयर पर मुश्तमिल होती हैं, एक को पेपिलरी डर्मिस कहते हैं, दी अपर लेयर को कहा जाता है। एंड रेटिकुलर डर्मिस दी लोअर पार्ट जो होता है, लेयर होती है। सरफेस एरिया स्किन का अगर देखना हो अडल्ट में तो कैसे मेजर करेंगे, और ज़्यादातर सरफेस एरिया होता है 1.5 to 2, एवरेज 1.7 होती है। स्क्वायर मीटर्स के एवरेज जो है 1.7 स्क्वायर मीटर्स होती है। द सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कैलकुलेटेड बाई डो बॉयस फार्मूला से मेजर की जा सकती है, जिसमें A इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू W, वेट जो इसका है
W होगा और H होगा एंड 71.84 जो है ये मैटर आपके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट होगी, वेट होगा और इसके साथ आप एरिया को ढूंढ सकते हैं कि सरफेस एरिया कितना है बच्चे का या किसी भी इंजेक्शन को आपने लगाना है उसका बॉडी सरफेस एरिया मेजर करना है तो वो डिपेंड करेगा। एरिया इज इक्वल टू वेट जो है उसका वो देखा जाता है और उसके साथ जो हाइट है वो देखी जाती है, विड्थ देखी जाती है, सॉरी ये W विड्थ है और हाइट देखी जाती है। और इसके अलावा हाइट और विड्थ के जो यूनिट्स हैं वही कॉमन यूनिट्स हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड। इसके अलावा 71.84 जो है इसके साथ जो ये पैरामीटर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो सरफेस एरिया होगा। किसी भी इंडिविजुअल का आपने मेजर करना हो तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन की अगर हम बात करें तो पिगमेंटेशन क्या होती है, यानी कलर देना स्किन को, कैसे हम कलर देते हैं या हो जाता है कलर स्किन का। देयर आर एट लीस्ट 5 डिफरेंट पिगमेंट दैट डिटरमाइन कलर ऑफ द स्किन, यानी बिल्कुल ब्लैक होते हैं लोग, जो रेस के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है और जो बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी है उस पर डिपेंड करता है, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे वाइट, कहीं पे ज़्यादा जो वाइट होते हैं। तो सबसे पहले जो कलर देता है बॉडी के अंदर या स्किन को जो कलर देता है मेलानिन होता है। मेलानोसाइट से बनते हैं। इट इज़ ब्राउन कलर एंड प्रेजेंट इन बेसल सेल एंड ऑफ द एपिडर्मस। एपिडर्मस में ये खासतौर पे मेलानिन होते हैं जो बाहर होते हैं क्योंकि कलर देते हैं स्किन को, ये होते हैं। मेलानोइड जो है इट रिजेंबल्स मेलानिन, ये भी उसी मेलानिन से रिजेंबल करता है बट इज प्रेजेंट डिफ्यूजली थ्रू आउट एपिडर्मस में, अंदर इसमें ज़्यादा डिफ्यूजली पार्ट में पाया जाता है, थ्रू आउट एपिडर्मस ये भी पाया जाता है। कैरोटीन की अगर बात करें, जैसे गाजर हम कहते हैं कैरोटीन को, दिस पिगमेंट इज येलो टू ऑरेंज इन कलर, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटम कार्नियम में खासतौर पे होता है एंड फैट सेल्स ऑफ डर्मिस एंड सुपरफिशियल फेशिया, फेशिया में होते हैं। जैसे डीप फेशिया होता है, एक सुपरफिशियल फेशिया होता है, ये सुपरफिशियल फेशिया में और कार्नियम में पाया जाता है, स्ट्रेटम कार्नियम में प्रेजेंट होता है और कैरोटीन कलर जो है वो देता है उसको। कैरोटीन से मुराद है कि येलो टू ऑरेंज कलर। हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए, आल्सो स्पेल्ड हीमोग्लोबिन, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इट इज़ फाउंड इन ब्लड एंड इज़ नॉट पिगमेंट ऑफ द स्किन, ये एक स्किन का पिगमेंट नहीं है, ब्लड की वजह से उसको कलर जो स्किन पे आता है वो हीमोग्लोबिन लाइक कलर होता है, पर्पल कलर उसको देता है, तो ये भी एक पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन में हो सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इट इज़ आल्सो फाउंड इन ब्लड एंड इज़ नॉट पिगमेंट ऑफ द स्किन, इट डेवलप्स ए रेड कलर, ये रेड कलर होगा, ये पर्पल कलर जो है वो बनाएगा। फर्स्ट 3 पिगमेंट्स जो बताए हैं, मेलानिन, मेलानोइड और कैरोटीन जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है विद दी रेस, रेसेस के ऊपर, यानी मुख्तलिफ अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं, काकेशियन हैं, एशियन हैं, जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये चेंज होता है। एज के लिहाज से ये चेंज होगा एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी के लिहाज से भी चेंज होगा, ये 3 वेरिएशन हो सकती हैं इन तीनों जगहों पे, तो लिहाजा डिपेंड्स ऑन द पर्सन, तो ये चेंजेस हो सकती हैं। इसके बाद हमसे जो सबसे पहला पार्ट है क्रॉस एनाटॉमी में देखते हैं एपिडर्मिस क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है और उसमें कैसे मौजूद होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और उसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहले बात ये है कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये एक्टोडर्म से बनता है, जो एम्ब्रियो की लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट एक्टोडर्म होती है, वहाँ से ये बनता है। विच इज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, और इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम पाई जाती है, एपिथीलियम की टाइप है जिसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहते हैं। whose cells become flattened as they mature and rise to the surface, और फिर rise to the surface ये आस्ते आस्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। एपिडर्मिस एक्सट्रीमली जो थिक है at the palms of hand and the soles of the feet to withstand with wear and tear at that regions, यानी कि ज़्यादा काम करना पड़ता है सख्ती से, तो हाथ के जो है वो मजबूत होते हैं और पाँव के जो टोज़ हैं वो थिक होती हैं, एपिडर्मिस मजबूत होती है ताकि वहाँ पे चलना होता है, भागना होता है, किसी चीज़ को कैप्चर कर पकड़ना होता है, ये जोर का काम है, पावर का काम है, तो उसमें इनको पावर दी गई है। इसके अलावा ऑन द अदर सरफेस ऑफ द बॉडी लाइक आर्म एंड फोर आर्म इट इज़ थिन, फोर आर्म में और आर्म में अगर देखी जाए तो ये थिन लेयर होती है। ये एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं। इसके आगे देखें 5 टाइप्स के जो सेल्स होते हैं, स्ट्रेटम बेसल होते हैं, इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस क्लोजेस्ट टू द डर्मिस के बिल्कुल करीब होती है। डर्मिस के बाद जो लेयर स्टार्ट होती है वो स्ट्रेटम बेसल ये है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कॉलमिनर और क्यूबैडल सेल्स होते हैं, इसमें कॉलमिनर हो सकते हैं, कॉलम टाइप शक्ल होती है, क्यूबैडल ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन में रेस्ट करते हैं। बेसल सेल्स आर द स्टेम सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस,
ये स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ से डर्मिस बनती है, सारी एपिडर्मिस के जो पार्ट हैं सारे बनते हैं इनसे। तो ये स्टेम सेल का काम करती है, यानी अगर ऊपर वाली लेयर केराटिन के साथ साथ टूटती जाती है, ब्रेक डाउन होती है, तो ये नई लेयर बनाते रहते हैं, न्यू सेल जो है ना वो बनते रहते हैं। इसके बाद देयर माइटोटिक एक्टिविटी रिप्लेनिशेस these cells in more superficial layers as these are eventually shed from epidermis। ऐसा ऐसा एपिडर्मिस जो है सो शेड करता है और ये माइटोटिक प्रोसेस से नई नई बनाती जाती है। रिन्यूअल ऑफ द एपिडर्मिस टेक्स अबाउट 3 to 4 वीक्स इन ह्यूमंस। 3 से 4 हफ्ते लगते हैं कम से कम, यानी 1 महीना लगता है उसको रिन्यूअल में, एपिडर्मिस जो दोबारा बनती है और टूटती हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि नए सेल बन रहे हैं और पुराने सेल जो है वो टूट जाते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा नीचे काम करती है, जो बनाती है सेल्स को, वो स्ट्रेटम बेसल के बारे में हमने बात की है। इन दी स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, सेकंड है लेयर। सेल्स बिकम इरेगुलर, पॉलीगोनल होते हैं शेप। द सेल्स आर ऑफन सेपरेटेड बाय नैरो ट्रांसल्यूसेंट क्लेफ्ट्स होते हैं, उनसे सेपरेट होते हैं। इस दीज क्लेफ्ट्स आर स्पैन्ड बाय स्पाइन लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल्स, हेंस इसको स्पाइनस सेल्स भी कहा जाता है। सेकेंड नेम इसका है स्पाइनस सेल्स। Which interconnect cells of this layer. Spines of cells meet end to end or side to side and are attached to each other by desmosomes, आपस में इनको मिलाते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, जो इसको बेसल के बाद जो सेल्स होते हैं इरेगुलर पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में इसका नाम मारे। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, कंसिस्ट इन थिक स्किन में खासतौर पे देखा जाए ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स, ओनली वन लेयर में बी विजिबल इन द स्किन, थिन स्किन में ये विजिबल होती है, ज़्यादा नजर नहीं आती। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स कंटेन न्यूमरस फाइन ग्रेन्स, क्रेटोहाइलिन होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स। इसके बाद चौथे नंबर पे जो लेयर है, टोटल 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, जो कि उसमें एक नहीं होती, दूसरे जो हेयरी पार्ट में नहीं होती, लेकिन दूसरे थिक पार्ट में ये पाई जाती है। इसमें ल्यूसिडम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड डेड सेल्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियाई ऑलरेडी बिगिंस टू डिजेनरेट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये ऑलरेडी यानी उसमें ख़त्म हो जाता है, नए सेल जो बनते हैं ऐसा ऐसा एक स्टेज वाइज जो ना क्रोनोलॉजिकल पाथवे में ये अपना वर्क करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम की अगर हम बात करें, cells are completely filled with keratin filaments, horny cells which are embedded in a dense matrix of proteins में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने देखा। अदर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस की मेलानोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि ब्राउन कलर कंपोनेंट इस ड्यू टू मेलानिन की वजह से होता है, और इसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, और 1000 to 2000 पर स्क्वायर मीटर पे ये पाए जाते हैं। और these cells are located in the epidermis and send fine processes between the other cells. Melanin is located in the membrane-bound organelles, जिसको हम मेलानोसोम्स कहते हैं, उनसे ऑर्गेनेलीज से बनती हैं, जिसे मेलानोसोम्स कहेंगे। इसके बाद थर्ड एपिडर्मिस की एक लेयर जो सेल्स पाए जाते हैं, उनमें है लैंगरहैंस सेल्स हैं, और another type of cell found within the epidermis. Morphologically they are not unlike melanocytes हैं, मिलते जुलते नहीं होते यानी तकरीबन, but functionally they are more closely related to macrophages, यानी एक लिहाज से मैक्रोफेजेस का इम्यूनिटी में इनका रोल है लैंगरहैंस सेल्स का। फिर हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये साफ ज़ाहिर से इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और आर लाइक लैंगरहैंस सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शनिंग इन द इम्यून सिस्टम। सम ऑफ देम विल बी प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस टुगेदर विद लैंगरहैंस सेल्स, दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज साल्ट, यानी साल्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इनको कहते हैं, लिहाजा इनसे भी मिलता जुलता है। लिहाजा ये देख लें आपके सामने स्किन एसोसिएटेड जो टिश्यू है, ये इसका ख़ास तौर पे नेम है जो उन्होंने बताया कि इसको हम दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है डर्मिस की बात करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट सेकंड पोर्शन है डीप लेयर और कोरियम भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है, डीप लेयर भी कहा जाता है, कोरियम भी कहा जाता है। इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, वो ऊपर वाली जो थी एक्टोडर्म से थी, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी अगर एम्ब्रियो से डिराइव की बात की जाए तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मैनी ब्लड वेसल्स, इनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं डर्मिस के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं जो इसको स्टिमुलेट करती हैं और एक्टिवेट करती हैं। इट शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन थिकनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टेंडिंग टू बी थिनर ऑन द इंटीरियर देन
ऑन पोस्टीरियर सरफेस। ये थिनर होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, सामने वाली अगर बॉडी है उसमें इतना थिक नहीं होता, थिनर पार्ट होता है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस पे अगर देखा जाए तो थिक होता है। ये मसल वहाँ पे स्ट्रांग होते हैं और वर्क करते हैं। इट इज़ थिनर इन वीमेन दैन इन मैन। अगर देखा जाए तो वीमेन में ये थिनर होते हैं, मैन की निस्बत। डर्मिस की बात करें, द डर्मिस ऑफ द स्किन इज कनेक्टेड टू अंडरलाइंग डीप फेशिया। डीप फेशिया जो आप पहले बता चुका हूँ, सुपरफिशियल फेशिया की बातें ये मैं बता चुका हूँ कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन की है। अगर आपने देखना है तो वहाँ पे आप चैप्टर को देख सकते हैं। अदरवाइज नोन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्हें कहा जाता है। स्किन ओवर जॉइंट्स ऑलवेज फोल्ड्स इन द सेम प्लेस। स्किन क्रीजेस उन्हें कहा जाता है, वो उन एरिया में पाई जाती है, तो लिहाजा इन एरियाज में ये एट दीज साइड्स स्किन इज थिनर देन एल्सवेयर एंड इज फर्मली टीथर्ड टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इनके साथ अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, जो इसको मजबूती से अटैच करके रखते हैं। Epidermis is the thick layer of the connective tissue to which epidermis is attached. ये एक thick layer है जो inner most है। Second जो layer है dermis is the thick layer of connective tissue की होती है, to which epidermis is attached। जो ऊपर वाली हमने epidermis पढ़ी वो इसके साथ attach होगी। Its deepest part continues into subcutaneous tissue without a sharply defined boundary. Its thickness is for this reason difficult to determine, but 1 to 2 millimeter and good guesstimate for average skin के लिए ये बताई गई है। बहरहाल इसके बाद appendages of the skin are the nails, hair follicles, sebaceous gland and sweat gland, जो कि आगे हम देखते हैं। The papillary layer की अगर बात की जाए consist of loose cell rich connective tissue which fills deep surface dermal papilla of the epidermis. Capillaries are frequent. Collagen fibers appear finer than in the reticular लेयर्स। तो रेटिकुलर लेयर भी होती हैं, लेकिन ये ऊपर वाली जो लेयर है पेपिलरी लेयर है, आगे जाके फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ। कैपिलरीज आर फ्रीक्वेंट इसमें है, कोलेजन फाइबर्स भी उसमें होते हैं, दैन फाइनर होते हैं, पतले होते हैं दैन इन रेटिकुलर लेयर में, इसमें थोड़े से मोटे होंगे, थिक होंगे। रेटिकुलर लेयर अपीयर डेंसर, ये थोड़ी सी डेंस होती है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ फ्यूअर सेल्स इसमें पाए जाते हैं। Thick collagen fibers 5 to 10 micrometer often aggregate into bundles up to 100 micrometer thick होते हैं। Crescent lines होती हैं, have been defined in living humans में define की गई हैं। They not always coincide नहीं करती with cleavage lines के साथ which Langers defined। Langers एक साइंटिस्ट था जिसने cleavage lines को डिस्कवर किया था। क्लीवेज लाइंस को अबाउट ए सेंचुरी बिफोर क्रेसल एंड कैडावर्स में देखा था। तो ये एक साइंटिस्ट है, लेंगर भी उसके साथ जो मिलता जुलता साइंटिस्ट था, तो उन्होंने जो डिस्कवरी की थी उसके बारे में बताया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सरफेस इरेगुलरिटीज़ कहाँ देखी गई है डर्मिस के अंदर। फाउंड लाइक टेंशन लाइंस, जिसे लेंगर्स लाइंस कहते हैं, ये वाली जो हमने अभी क्लीवेज की लाइन करते हैं। जब हम किसी चीज़ को कट करते हैं तो किस एरिया से कट करना चाहिए, हीलिंग कहाँ से ज़्यादा अच्छी होगी, तो ये डिपेंड करता है लेंगर्स लाइन्स के ऊपर, टेंशन लाइन जिसे कहते हैं। फ्लेक्चर लाइंस होती हैं, क्रीजेज होती हैं, उसको देखना होता है ऑपरेशन सर्जरी से पहले। एंड पेपिलरी रिजेस होती हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे हाथ की रिजेस बढ़ जाते हैं पेपिला, उनको हम डीपली अगर देखें तो आपको नजर आएंगे कि फिंगरप्रिंट्स जो हर बंदे के डिफरेंट क्यों होते हैं, वो पेपिलरी रिजेस उन्हें कहा जाता है। ये डर्मिस में खासतौर पे जो डर्मिस है उनमें पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़्यादातर इसका पोर्शन मजीद यहाँ पे क्लियर करने के लिए आपको दिखाया गया है। ये जो है लाइंस है, लेंगर्स लाइंस, जो हमने पहले बात की है क्लीवेज लाइंस की, किस तरह इनकी लाइंस होती है, कटिंग होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, हेड में और अदर पार्ट्स में। इसके बाद अगर हम बात करें हेयर शाफ्ट, कोर ऑफ, ये ओपनिंग है इसकी स्वेट ग्लैंड की, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हेपोडर्मिस है, इक्राइन, जैसे स्वेट ग्लैंड है ये वाला, इक्राइन उसे कहते हैं, सब टाइप्स होती है ना, और पिसिनियन कॉर्पसल है, क्यूटेनियस वेस्कुलर प्लेक्सेस हैं, इसी तरह एडिपोज टिश्यू, सेंसरी नर्व फाइबर्स, हेयर फॉलिकल, हेयर रूट ये पाई जा रही है। इसके बाद स्पेशियस ग्लैंड इनके साथ होते हैं, हेयर के साथ अटैच होते हैं। हेयर फॉलिकल होता है, इसी से एक्नी के जो चांसेस होता है, सीबम अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाए तो एक्नी के चांसेस होते हैं, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, जो इन मसल्स को, जो इनको स्ट्रेट करने के लिए हेयर को ड्यूरिंग सेक्स या ऐसी कंडीशन में इसको इरेक्ट करने के लिए ये होते हैं इरेक्टर, इसे पिलाई मसल्स कहा जाता है। तो लिहाजा नेक्स्ट हम जाते हैं एपिडर्मिस में, जो थर्ड पोर्शन है इसका, जो लोएस्ट लेयर है, तीसरी लेयर है डर्मिस की बाद,
उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू आर कंटिन्यूअस विद द फाइबर्स इन द डर्मिस। डर्मिस लेयर के साथ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर इसके साथ होती है। लिहाजा कोलेजन का आपको पता है, कोलेजन अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर, वरना कोलेजनेज एंजाइम इसको अगर तोड़ रहा है, तो फिर वो जो रिंकल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर वो कोलेजन की वजह से होते हैं। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे एजिंग में कैसे आप इसको रोक सकते हैं। एडिपोज टिश्यू सर्व्स एज ए हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का काम करतेगा अगेंस्ट कोल्ड क्लाइमेट एंड एज फैट स्टोरेज। जब ज़्यादा सर्दी हो, कोल्ड क्लाइमेट हो, उसमें एडिपोज टिश्यू इसमें हाइपोडर्मिस में काम देता है, गर्मी यानी प्रोड्यूस करेगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू अलाउज द स्किन टू बी बाउंड विद अंडरलाइंग न्यू मसल्स, आल्सो कंटेन लार्ज ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड ब्लड वेसल जो वेन्स हैं बहुत ज़्यादा मकदार में हाइपोडर्मिस में मौजूद होती हैं। तो लिहाजा अब हम बात करेंगे व्हाट आर द अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, कि इसकी अपेंडेजेस क्या नजर आती हैं बॉडी के अंदर। अब वैसे तो स्ट्रेट हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, क्लीवेजेस हैं या कोई पोर्शंस ऐसे दिखाए गए हैं, लेकिन इनकी कुछ अपेंडेजेस भी पाई जाती हैं, उभार जिन्हें हम कहते हैं, वो कैसे हैं, क्या क्या उसमें से चीज़ें नजर आती हैं। अपेंडेजेस ऑफ द स्किन आर द नेल्स, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स। इनके बाद जो है मेमोरी ग्लैंड्स भी इसमें हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है कि कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। क्लासिकल एंडोक्राइन ये है कि एक चीज़ वो रिलीज करेगा और दूसरे ब्लड वेसल के अंदर देगा, वो सारे बॉडी के अंदर शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएगा, एंडोक्राइन जिसे कहते हैं। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ डक्ट वाले ग्लैंड्स उन्हें कहा जाता है। जैसे पैराक्राइन वो होता है कि एक सेल दूसरे सेल को या टिश्यू दूसरे टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है कि वो उसको बढ़ाए, उसकी ग्रोथ को तेज करता है। ये देखें जो एंगल दिखाए गए हैं, एरो दिखाए गए। इसके बाद ऑटोक्राइन वो होते हैं कि अपने सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी जब मैच्योर हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है, अपने सेल्स ही उन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये एक्सोक्राइन की टाइप है। ऑटोक्राइन के अपने ही सेल्स को वो स्पीड अप करते हैं या ब्लॉक करते हैं, ज़्यादा बन गए हैं या ब्लॉक करना है या कुछ ज़्यादा स्टिमुलेट करना है, तो एग्जांपल आप देखेंगे। इसके बाद जक्स्टाक्राइन है कि अपने सेल्स एक दूसरे के वो स्टिमुलेट करते हैं दूसरे सेल्स को एट ए टाइम। करीबी सेल पड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस था पैराक्राइन में, पैरेलल पड़े हुए हैं, नज़दीक आमने सामने हैं, लेकिन जक्स्टाक्राइन में जक्स्टामेडुलरी जैसे आप पढ़ते हैं, इसी तरह बिल्कुल करीब करीब सेल्स हैं, तो वो आपस में शेयरिंग करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या इनिबिट करते हैं एक्टिविटी को। इसके बाद इंट्राक्राइन जो होता है सेल के अंदर ही तब्दीली करते हैं, इंट्राक्राइन। ये ऑटोक्राइन था, अपने सेल्स को स्टिमुलेट या उसको इनिबिट करते हैं, ये अंदर ही सेल्स को ब्लॉक करते हैं या ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड, ज़रूरत के मुताबिक जो है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेल्स, ओनिकी, ओनिक जिसे कहते हैं, ओनिको या अंग्यूज, एंग्यूज भी कहते हैं, अंगस भी कहते हैं। तो इसमें अदर टर्म्स यूज्ड लाइक पेरोनचिया या क्वेलोनिचिया, इसी तरह ऑनकोमाइकोसिस, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये भी इस्तेमाल होती हैं, हम देखेंगे आगे। जो कि नेल्स का अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ फंगस इसको नेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा इनको डिस्ट्रॉय करता है, उनमें ये कुछ डिजीज़ हो जाती हैं वहाँ पे, सीलिया की या अदर फॉर्म की, तो ये उनके नाम हैं डिफरेंट। इसके बाद नेल्स आर कैरेटिनाइज्ड, यानी कैरेटिन सेल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। प्लेट्स होती हैं ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज, दो जगहों पे पाई जाती हैं, फिंगर्स के टिप्स के ऊपर और टोज जो नीचे पाँव की अंगूठे हैं या उंगलियां हैं उसके जो एंड्स हैं, डिस्टल पोर्शन होता है, वहाँ ये पाए जाते हैं, नजर आते हैं। प्रॉक्सिमल एज ऑफ द प्लेट इज रूट ऑफ द नेल, ये रूट ऑफ द नेल कहलाएगी। शुरू में जो प्रॉक्सिमल पार्ट यानी बॉडी के करीब वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे रूट ऑफ द नेल है। इसके बाद विद द एक्सेप्शन ऑफ द डिस्टल एज ऑफ द प्लेट, नेल इज सराउंडेड एंड ओवरलैप्ड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन नोन एज नेल फोल्ड्स, उन्हें कहेंगे नेल फोल्ड्स। ये फिगर आगे दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। द सर्फेस ऑफ द स्किन कवर्ड बाय नेल इज कॉल्ड नेल बेड, नेल बेड से कवर होती है, नेल फोल्ड्स होते हैं। इसके बाद क्यूरियम इज वेरी, डर्मिस को कहते हैं, इज वेरी वेस्कुलर एक्सेप्ट द लिनोल। लिनोल जो है एक पोर्शन है इसी का, नेल का, वो हम देखते हैं अकाउंट ऑफ पिंक कलर इसमें आ जाता है। केराटिनाइजेशन क्या होती है? द कन्वर्जन ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम सेल्स इनटू
ए हार्निक मटेरियल, जिसमें हार्नी मटेरियल होता है सच एज नेल्स में कन्वर्ट होता है, या कॉर्निफिकेशन भी इसे कहा जाता है। ये स्क्विमस एपिथेलियम ही कन्वर्ट होती है हार्नी मटेरियल में, और ये नेल जो है वो निकलते हैं, केराटिनाइजेशन होती है, इसके बाद नए नेल्स भी साथ साथ बनते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनाटॉमी इसकी क्या है। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्री ने एज है, ये एज है, इसके अलावा नेल बेड इन्हें कहेंगे, अंडरनीथ है, और यहाँ पे जो लेन्यूल है और नीचे जो पोर्शन है क्यूटिकल है, एपोनाइकियम इसे कहते हैं, एपोनाइकियम या नाइकियम। इसके बाद नेल रूट है, साइट ऑफ द ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरफ आगे की तरफ जाएंगी, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ये डिस्टल पोर्शन है। नेल बॉडी है, लिन्यूल है, इसके अलावा बोन ऑफ द फिंगर टिप है, और इसके नीचे जो है डर्मिस है, और उसके ऊपर बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस फिर डर्मिस फिर बोन ऑफ द फिंगर टिप है, फिर बाकी जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए। इसके अलावा ये भी एक बात की गई है वेरी इंफॉर्मेटिव कि फिंगर नेल्स ग्रो एट एन एवरेज रेट ऑफ 0.5 मिलीमीटर पर वीक वाइल द टो नेल्स ग्रो एट अबाउट हाफ दैट रेट। इसके हाफ रेट में ये ग्रो करते हैं, यानी पाँव वाले जो टोज हैं उनके जो नाखून हैं वो ज़्यादा लेट ग्रो करेंगे, जबकि जो हमारे दूसरे हैं फिंगर नेल्स हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, यानी उसका हाफ का फ़र्क है। अगर एक हफ्ते में वो करते हैं तो वो 2 हफ्ते बाद करेंगे। तो हेयर की अगर बात करें, पाइलस भी कहते हैं या पिल्लाई भी कहते हैं, क्योंकि आगे उसकी पलुलर अगर फॉर्म कहें तो फिर पिल्लाई होगा। पाइलस जो है तो सिंगुलर फॉर्म है। हेयर ग्रो आउट ऑफ फोलिकल्स विच आर इन्वेजिनेशन ऑफ द एपिडर्मस। इन्वेजिनेशन ऑफ द एपिडर्मस है, उनसे सुराख निकलता है, वहाँ से आउट होता है, गुजरता है, पास आउट होता है एपिडर्मस से इनटू द डर्मिस, डर्मिस से निकल कर एपिडर्मिस से निकलता है, फिर वो आपको नजर आता है हेयर। Each hair has a shaft that projects above the surface, skin surface, and a root that is embedded in the skin. Skin में root होगी, नीचे से यहाँ से आएगा, और बाहर जो आपको hair shaft नजर आती है, hair shaft. Follicle lie obliquely, और ये सीधे नहीं होते, oblique शक्ल में होते हैं, या इस तरह शक्ल में कर लें या इस तरह शक्ल में कर लें, oblique है, सीधे नहीं होते, इस तरह नहीं होते, इस तरह नहीं होते, horizontal नहीं होते। तो obliquely यानी पहले हमने टर्म भी देखी हुई है, oblique किसे कहेंगे, to the skin surface and their expanded extremities called hair bulbs। उनकी जो expanded activities होंगी नजर आएंगी बाहर आपको, वो hair bulbs कहलाएंगी। penetrate into the deeper part of the dermis, और ये deeper part of the dermis तक चले जाते हैं। each hair bulb is concave at its end and the concavity is occupied by vascular connective tissue hair papilla, जिन्हें हम hair papilla कहते हैं, उससे बना होता है, भरा होता है, यानी काफ़ी ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे हो रही होती है, और ब्लड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। एसोसिएटेड विद ईच हेयर फॉलिकल इज द बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर कॉल्ड इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं जो इनको स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मेक्स द हेयर स्टैंड इरेक्ट, ये मेन इनका काम है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर इन द बॉडी, अगर देखा जाए कहाँ पे बाल हैं, कहाँ पे बॉडी के बाल नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ वी सी द हेयर, जो ये आप देखते हैं पॉम, तो इसमें हेयर नहीं है, जबकि बैक साइड पे देखें तो हेयर मौजूद है। तो ये दीज आर द थिंग्स इनको बताया है बेसिकली कि हेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस नंबर्स ओवर द होल सरफेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ऑन द लिप्स। लिप्स में हेयर नहीं होते, पाम्स ऑफ द हैंड्स में नहीं होते, साइड्स ऑफ द फिंगर्स नहीं होते, ग्लैंड्स, पिनस, जो पिनस है फीमेल मेल में वहाँ पे नहीं होते, क्लैटोरस जो मेल में फीमेल में होती है वहाँ पे क्लैटोरस में भी नहीं होते, लेबिया माइनोरा है एंड इंटरनल सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा है, एंड सोल्स ऑफ एंड साइड्स ऑफ द फुट एंड साइड्स ऑफ द टोज वहाँ पे भी नहीं होते। तो ये पार्ट है जहाँ पे हेयर नहीं होते, बाकी तमाम पार्ट्स में हेयर बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। हेयर कॉन्स्टेंटली शेड एंड रिप्लेस्ड बाई न्यू वंस, ये भी आपको पहले बता चुका हूँ, हेयर भी कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। लाइफ पीरियड आर डिफरेंट एंड स्कैल्प 3 to 5 years होते हैं। आईब्रोज में, आई लैशेज में 3 to 5 months होते हैं। ये हैं ब्रेक डाउन होते हैं, फिर नए बनना शुरू हो जाते हैं। एक्सक्रीशन, लेकिन अडल्ट एज में देखा गया है मेल के अंदर जो है बाल्डनेस ज़्यादा हो जाती है। कुछ जो अगर रेसेस में ऐसा देखा गया है, उनके ख़ानदान में देखा गया है या पेरेंट्स में देखा गया, तो उनमें ज़्यादा स्कैल्प के हेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। एक्सक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम फंक्शन इन अब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन एंड सम मेडिकेशन में इन्वॉल्व है, काम करता है, एंड एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व है, जैसे परस्पायरेशन विया द इग्राइन ग्लैंड्स,
पर्सपिरेशन भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ट्रांसडर्मल मेडिकेशंस होती हैं, जो ऑक्सीजन एंड सम मेडिकेशंस हैं वो हम ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, स्किन के थ्रू दे सकते हैं, टॉपिकल जिन्हें कहते हैं, मुख्तलिफ जेल फॉर्म में है, मुख्तलिफ क्रीम्स और ऑइंटमेंट फॉर्म में है, अवेलेबल हैं, तो हम लगा सकते हैं स्किन के ऊपर। यहाँ पे फिर हेयर फॉलिकल एंड हेयर को दिखाया गया। यहाँ से हमने हेयर का कट सेक्शन लिया। फॉर एग्जांपल हेयर शाफ्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ से लेकर जो पोर्शन होगा आउटर हेयर शाफ्ट कहलाएगा। जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो हेयर रूट होगा। यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, हेयर बल्ब है, हेयर मैट्रिक्स है, हेयर पपीला है यहाँ पे, जहाँ पे ये अटैचमेंट हो रही है, जहाँ से ये हेयर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं यहाँ पे मौजूद है। एपोक्राइन, एक इक्राइन आपने ग्लैंड्स देखे थे वो और होते हैं, और एपोक्राइन और होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट नियर हेयर, ये भी हेयर में देगा, इसकी डक्ट्स जो है वो रिलीज करेगा सीबम। इसके बाद इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं जो इनको इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, आप इसको एक दफ़ा तवज्जो से देखें। इसके बाद इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, पाइलस भी कहते हैं, पिलाई भी कहते हैं, उसकी प्लूरल फॉर्म में ये बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं, बैंड ऑफ स्मूथ मसल जिसे इरेक्टर पिलाई कहते हैं। कनेक्ट्स दिस अंडर सरफेस ऑफ फॉलिकल टू द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस के साथ अटैच होते हैं। मसल इज इनर्वेटेड, इनको इनर्वेशन मिलती है बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिंपैथेटिक सिस्टम, जब कोई बंदा भागता है, गुस्सा करता है, रेज में आता है, रन करता है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन में जाता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके हेयर जो है, काफ़ी एनिमल्स के, डॉग्स के सिंपैथेटिक की वजह से उनके हेयर जो है ना इरेक्ट हो जाते हैं, स्टैंड इरेक्ट। एंड इट्स कंट्रैक्शन कॉजेज द हेयर टू मूव इनटू ए मोर वर्टिकल पोजीशन, सीधी पोजीशन में आ जाए इस तरह। इट ऑल्सो कंप्रेसेस द सेबेशियस ग्लैंड, उसको कंप्रेस करता है कि वो ज़्यादा सीबम ना रिलीज करे, सिक्रीट ना करे, तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इरेक्टर पिलाई मसल। एंड कॉजेज इट टू एक्सट्रूड सम ऑफ इट्स सिक्रीशन, उसमें से एक्सट्रूड करें, कॉजेज इट टू एक्सट्रूड। द पुल ऑफ द मसल ऑल्सो कॉजेज डिम्पलिंग ऑफ द स्किन सरफेस, सो कॉल्ड गूज फ्लैश इसे कहा जाता है। पिक्यूलियर रफनेस ऑफ द स्किन प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड और फियर जब होती है उसमें रफनेस स्किन बन जाती है, जैसे बुखार की कंडीशन हो या और कोई कंडीशन हो, तो वो जो है ना महसूस होता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, गूज फ्लैश जैसे शक्ल बन जाती है। इन विच द हेयर फॉलिकल बिकम इरेक्ट एंड फॉर्म बम्प्स ऑन द स्किन के ऊपर बना लेते हैं। ये एक फॉर्म है इरेक्टर पिलाई की जो सम कंडीशन में चेंज हो सकती है। इसके बाद सेबेशियस ग्लैंड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। पुअर देयर सिक्रीशन, कहाँ पे सिक्रीट करें, सीबम जिसे हम कहते हैं, ऑन टू द शाफ्ट्स ऑफ द हेयर्स, शाफ्ट ऑफ द हेयर के अंदर वो रिलीज करेंगे एज दे पास अप थ्रू द नेक ऑफ द फॉलिकल्स, नेक ऑफ द फॉलिकल से गुजरते हैं। सीबम इज एन ऑयली मटेरियल दैट हेल्प्स प्रिजर्व द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इमर्जिंग हेयर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा बनाता है। इट आल्सो ऑयल द सरफेस एपिडर्मिस को भी ऑयल प्रोवाइड करता है अराउंड द माउथ ऑफ द फॉलिकल, जो माउथ ऑफ द फॉलिकल है उसको देता है। एंड ह्यूमंस दे आर फाउंड इन ग्रेटेस्ट अबंडेंस ऑन फेस एंड स्कैल्प, स्कैल्प के अंदर यानी सर के ऊपर जो सेबेशियस ग्लैंड है ज़्यादा पाए जा रहे हैं और फेस के ऊपर ज़्यादा पाए जा रहे हैं। दो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल स्किन साइड्स एक्सेप्ट द पॉम्स एंड सोल्स के अंदर नहीं होती, बाकी तमाम बॉडी में पाई जाती हैं, ज़्यादा मकदार में इन एरियाज में पाई जाती है। इन द आईलिड्स मिबोनियन जो है सेबेशियस ग्लैंड्स सिक्रीट ए स्पेशल टाइप ऑफ सीबम इनटू द टीयर्स में अंदर भी सिक्रीट करती है, उसको मिबोमियम सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है, यानी जो आई लिड को प्रोवाइड करती हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड है या सीबम प्रोवाइड करती है, उसका नाम डिफरेंट है। इसके बाद स्वेट ग्लैंड की हम बात करेंगे। स्वेट ग्लैंड जो है जो पसीना प्रोड्यूस करता है उसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं, और इसमें आर लॉन्ग स्पाइरल होते हैं, गोल ऐसे स्पाइरल टाइप होते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ट्यूब लाइक यानी उसमें नीचे ट्यूब होती है, वो ग्लैंड बाहर निकलते हैं, ट्यूब की शक्ल में निकलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, बाहर नजर भी आते हैं उसकी ओपनिंग, एक्सेप्ट ऑन द रेड मार्जिन ऑफ द लिप्स, जो रेड मार्जिन ऑफ द लिप्स है वहां पे नहीं होते स्वेट ग्लैंड। नेल बेड्स पे नहीं होते। ग्लैंड्स पिनस, जो मेल की ग्लैंड्स पिनस है उसमें नहीं होते। एंड क्लाइटोरस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वहां पे भी नहीं होते। दीज ग्लैंड्स एक्सटेंड थ्रू full thickness and dermis and of dermis and their extremities may lie in the superficial fascia. Superficial fascia में ये पाए जाते हैं, डीप fascia भी होता है, superficial fascia भी होता है, तो ये बाहर नजर भी आते हैं, थोड़े से वहां से रिलीज करते हैं।
The sweat glands are therefore most deeply penetrating structure, सबसे नीचे ये पाए जाते हैं ऑफ दी ऑल द एपिडर्मल अपेंडेजेस में सबसे नीचे जो डीपर पाए जाते हैं जहां से वो रिलीज हो रहे हैं वो कहलाते हैं स्वेट ग्लैंड्स। इसके बाद एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एक टाइप है इसकी जो कि आर इनएक्टिव अंटिल दे आर स्टिमुलेटेड बाय हार्मोनल चेंजेस इन प्यूबर्टी। जब बच्चों में ये नहीं काम करते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी हो जाती है, अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एपोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स आर मेनली थॉट टू फंक्शन एज ओल्फैक्टरी फेरोमोन्स। फेरोमोन्स का काम करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में फेरोमोन्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे मेल और फीमेल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, स्मेल की वजह से वो उसकी तरफ मूव करते हैं। केमिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं इन अट्रैक्टिंग ए पोटेंशियल मेट। जो मैट करने वाले होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले दो मैट होते हैं, मेल और फीमेल, उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड इज एड्रेनालिन स्टिमुलस करता है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम उसको स्टिमुलेट करेगा स्वेट ग्लैंड को, विच इज दी हार्मोन कैरिड इन द ब्लड से एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रीनलिन एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है। ये इसको स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट को निकाले। यानी आप जब रन कर रहे होते हैं किसी भी कंडीशन में, गर्मी की हालत में खेलते हैं, काम करते हैं, तो उसमें ये एड्रीनलिन उसको स्टिमुलेट करेगी। एक लास्ट पोर्शन है सिरोमिनस ग्लैंड्स कुछ पाए गए हैं। सिरोमिनस और स्पेशल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड ओनली इन द डर्मेस ऑफ ईयर में पाए जाते हैं, कानों में के जो डर्मेस है उनमें पाए जाते हैं। सिरोमिनस ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए वैक्सी सिक्रीशन, आपने देखी होगी वैक्स जो बनाती है हमारे कानों के अंदर नजर आते हैं, ईयर ड्रम के अंदर, उसको लुब्रिकेट करते हैं बेसिकली, और इनका ये प्रोटेक्ट ईयर कैनॉल्स एंड लुब्रिकेट ईयर ड्रम को करते हैं। सिरोमेन जो है खासतौर पे प्रोटेक्ट्स द ईयर बाय ट्रैपिंग फॉरेन मटेरियल, कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट है, ईयर बॉर्न पैथोजेंस है, वो एयर कैनाल के अंदर दाखिल ना हो, उसको रोकने के लिए ये होते हैं खासतौर पर। फिर वैक्स के जरिए हम साफ भी करते हैं, समटाइम बंद भी हो जाते हैं कान, तो उनको हम साफ करते हैं, तो वैक्स को निकाल लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। The cerumen is made continuously and slowly pushes older cerumen outwards, बहर की तरफ कान से निकालेंगे, towards exterior of the ear canal से बहर निकालेंगे, बॉडी के अंदर नहीं दाखिल करेंगे। Where it falls out of ear or is manually removed, या हम बिल्कुल हाथ से उसे नहीं निकाल लेते हैं या किसी चीज़ से, या फिर उसको निकाला जा सकता है या ऑटोमेटिकली निकलते रहते हैं। इसके बाद हम थैंक यू, आई थिंक फर्स्ट पार्ट हैज़ फिनिश्ड नाउ। अगर इस पार्ट में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट, आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे राइट कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। लिंक्डइन में भी मेरा है अकाउंट, इसके अलावा फेसबुक पेज के ऊपर भी मेरा अकाउंट है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फर्दर जो है नेक्स्ट पार्ट इसका होगा, उसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, इनके डिजीज़ के ऊपर, इनके मुख्तलिफ जो अदर पार्ट्स हैं, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, लिम्फेटिक सप्लाई है, एंडोक्राइनोलॉजी है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसको आप वीडियो को देखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। Thank you. Allah Hafiz.